શ્રીના આશીર્વચન સાથે પ્રાતઃકાલીન આ સત્રની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. આ બધા જે પધાર્યા છો બધાને જ અમારા પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી રામસ્વરૂપદાસજી મહારાજ સાહેબની સ્મૃતિમાં આયોજિત આ શુભ પ્રસંગનો પ્રસાદ લેવાનો છે અને પ્રસાદ લેવા માટે આ બધાને વ્યવસ્થા અહીં રાખવામાં આવી છે. ભાઈઓની વ્યવસ્થા જુદી, માતાઓની વ્યવસ્થા જુદી. તો જે કોઈ અહીં આવ્યા છે કોઈ પણ પ્રસાદ લીધા વગર ન જાય એટલા માટે બધાને આગ્રહ કરું છું. અને આ પ્રસાદ છે એમ સમજીને ગ્રહણ કરવાનું છે. અમે જન્મ શતાબ્દી ઉત્સવ કર્યો હતો ત્યારે પણ સદગુરુ કબીર ભગવાનની શતાબ્દી પ્રસંગે કહ્યું હતું કે અમે ભોજન નથી કરાવતા, અમે આપણે પ્રસાદ આપી. આ સંતોનો પ્રસાદ છે. મહાપુરુષો પૂજ્યપાદ પંત શ્રી હજૂર સાહેબ, બીજા બધા પધારેલા મહાપુરુષો, એમની વ્યવસ્થા જુદી છે, સંતોની વ્યવસ્થા જુદી છે. અને આ બધા જે પધાર્યા છો બધાની પણ વ્યવસ્થા છે. તો પ્રસાદ લઈને બધાએ પછી બપોરે અહીં 3 વાગે ફરીથી સત્સંગનો પ્રારંભ છે. અને ત્યારે ઘણા બધા મહાપુરુષોના પ્રવચન સત્સંગનો સાંભળવાનો લાવો આપ બધાને મળવાનો છે. એટલે બપોર પછી ફરી અહીં આપણે બધાને ભેગા થવાનું છે. અને બપોર પછીનો જે કાર્યક્રમ છે એને આપણે બધાને તે પ્રસંગે જાણકારી આપવામાં આવશે. રાત્રિનો જે કાર્યક્રમ છે એ પ્રમાણે પણ આપણે જાણકારી આપવામાં આવશે. એટલે આ બધા જ પ્રસાદ લેવા માટે આપણા જે માતાઓ માટેનું સ્થાન છે ત્યાં અને જે ભાઈઓને માટે સ્થાન નિર્ધારિત કરેલું છે ત્યાં બધા પધારજો. જેટલા ગ્રંથ ઉપર પાઠ કરવાવાળા મહાપુરુષો બેઠા છે પોતપોતાના ગ્રંથને વ્યવસ્થિત રીતે મૂકી દે, કારણ ફરીથી એમને ત્યાં સ્થાન ઉપર બેસીને પાઠ કરવાનો છે. તો હવે આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ પ્રાતઃકાલીન સત્રની અને પ્રસાદ લેવા માટે બધાને આમંત્રણ છે. તો એના માટે આપ બધા જ પધારજો. પૂજ્યપાદ પંત શ્રી હજૂર સાહેબનો આવાસ જ્યાં રાખવામાં આવ્યો છે એ શ્રી રામ મંદિર, ત્યાં જેને કોઈને પૂજ્યપાદ હજૂર સાહેબને મળવું હોય, જે કંઈ લહેરતારા માટે ભેટ ધરવી હોય તો એના માટેની ત્યાં વ્યવસ્થા છે. અને કાર્યક્રમ માટે કબીરાશ્રમ માટે જે કોઈને કંઈ યોગદાન કરવું હોય એના માટે સામે એક કાઉન્ટર રાખવામાં આવ્યું છે, ત્યાં ભેટ લખાવીને પહોંચ પ્રાપ્ત કરવાની. એ બધું આપણે જાણકારી માટે હવે આપણે બધાને પ્રસાદ લેવા માટે જવાનું છે. અને આ પ્રાતઃકાલીન સત્રની પૂર્ણાહુતિ છે. બોલો સદગુરુ દેવ કી. બપોરે 3 વાગે ફરીથી વ્યાખ્યાનો શરૂ થશે. બપોરે 3 વાગે. झूठा ठाठ रचो कहत कबीर समझ मन मूरत, कहत कबीर समझ मन मूरत, तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो रे तूने कबहु ना कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। भजन में भाव है, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है।
केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है, उन्हीं का वर्णन है इसमें। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो पर तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो, लोभ बढ़े नित नयो। परम पूज्य श्री आचार्य चरण साहब जी, मंच स्थित हमारे परम पूज्य श्री जामनगर कबीर मंदिर के महंत श्री जगदीश साहब जी, महंत साहेबों तथा आत्म पिपासु भक्तजनों, आज सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब का तिथि मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब का भौतिकीय शरीर नहीं है, पंचभौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनका वाणी वचन, उनका कथन विचार, रहस्य जो उनका था वो प्रकट है। आप देख रहे हैं, शरीर से नहीं है लेकिन वह परोक्ष रूप से है। पूज्य श्री जगदीश साहब जी हमारे नेता हैं। नेता हैं मतलब हम उनके, जब मैं हरिद्वार ऋषिकेश में पढ़ता था तो वहाँ एक कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला में विद्यार्थी एकत्रित होकर के अपने विद्या अभ्यास के लिए, पैसा के लिए जाया करते थे। विद्यार्थी मांगते थे सन्यासियों के, मंडलेश्वरों से। उसमें पूज्य हमारे श्री जगदीश साहब जी मुनीटर हैं और अभी मुनीटर थे और अभी भी मुनीटर हैं, अगुआ है। नेता इसलिए कहा कि नेता उसको कहते हैं आगे बान को जो आगे ले जाए। आजकल तो नेता शब्द बिगड़ चुका है। नेता का मतलब आजकल होता है नेता, जो राजकारण में हो रहा है। तो श्री जगदीश साहब जी हमारे प्यारे बड़े समझदार महापुरुष हैं। जिस परंपरा में जहां रह करके हमारे सदगुरु श्री स्वर्गवासी श्री राम स्वरूप साहब जैसे अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया, देश विदेश में जा करके, देश विदेश से हाँ फिरो गांव गांव की खोर, जेरा ऐसा ना मिले लेवे फटक पछोर। सर्वत्र जा करके अपने सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वह सर्वत्र प्रचार किए। और उसी मार्ग में वहीं आकर के हमारा जो जगदीश साहब जी है
अभी वर्तमान में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। स्वयं संत का काम ही है कि स्वयं जाने और दूसरे को जनावे। पूज्य हमारे श्री आचार्य साहब बता रहे थे कि राम स्वरूप का क्या मतलब होता है। राम जो सब घट मेरी साइया सुनी सैद न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। स्वरूप मतलब स्वयं का दो प्रकार की बात है, एक रूप और दूसरा स्वरूप। रूप जो संसार में जो दृष्टि में आवे, जो देखने में आवे, वो रूप होता है, और अब जो देख रहा है दृष्टा वो स्वरूप होता है। स्वयं अपना चैतन्य, स्वयं मतलब सेल्फ, स्वयं। तो आपके अंदर में ही राम स्वरूप साहब जी प्रकटित रूप में प्रकट है और जीता जागता है। वो नहीं मरता, वो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अभी भी है। अगर वो नहीं हो तो आप चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। जैसे यत्रैष जगदाभासो दर्प शांता पुरमथा, जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई पड़ता है, ऐसे ही जिसमें ये सब संसार दिखाई पड़ता है। आप ये संसार किस में दिखाई पड़ता है? संसार की प्रतीति कहाँ होती है? संसार को कौन देखता है? ये पंडाल हमको नहीं देखता, पंडाल आपको नहीं देख रहा है, पंडाल को आप देख रहे हैं, सबको आप देख रहे हैं। लेकिन भूल क्या हो गई? और यही सदगुरु की आवश्यकता है, यही संतों की आवश्यकता है कि सब तेरे में प्रतीत हो रहा है, आपन पो आप ही बिसरई हो। जैसे कांच के मकान में जब कुत्ता जाता है तो अपने प्रतिबिंब को देखता है, रिफ्लेक्शन को देखता है, लेकिन कुत्ता को भ्रांति हो जाती है कि दूसरा कुत्ता है, और दूसरा कुत्ता जान करके वो भूखना शुरू कर देता है। वास्तव में वहां कुत्ता है नहीं, वास्तविक उनका प्रतिबिंब है। ऐसे ही ये संसार जो है, ये चाकचक, ये पर्दा, ये आपके चैतन्य में भासता है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन आपके चैतन्य में, आपके स्वरूप में, राम स्वरूप में तीनों काल में है नहीं। लेकिन हम भूले हो गई, जैसे कुत्ता पकड़ लेता है, कुत्ता को भ्रांति हो जाती है, वो मानने लगता दूसरा कुत्ता, ऐसे हम मान लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वास्तव में अपना कौन है? या मैं क्या मेरा क्या तेरा, लाज न लागे है कहतगर मेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुम कहते हो कि मेरा है। मेरा की भी भावना, मेरापना जो है ये मन में है, मन में ही मोक्ष है और मन में ही बंधन है। द्वै पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बद्धते जंतु न ममेति विमुच्यते। एक बार इस पार से उस पार कहीं यात्रा के लिए संत यात्री लोग जा रहे थे, तो उसी नौका में एक संत बैठे हुए थे। तो बीच धार में जब नौका चली गई, होरी जिसको बोट कहते हैं, तो नौका डगमग करने लगी, डोलने लगी, डूबने की स्थिति में आ गई। तो सभी यात्रीगण जो है अपने अपने उपास्य देव का आवाहन करने लगे, पुकारने लगे। उसी नौका में एक फकीर थे, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो सभी आदमी कहे, हम लोग जिसको जिसको मानते हैं, जिस देव को हम पूजते हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि किसी प्रकार से नौका डूबे नहीं। आप आस्तिक होकर के, संत होकर के आप बैठे हैं चुपचाप। तो संत ये बोले, जिसकी नौका है वो बोले, वो बुलावे, मेरी तो नौका है नहीं। तो जो केवट था, नौका चालक था, वो कहा, आखिर आपकी नौका नहीं है, लेकिन नौका डूबेगी तो तुम डूबोगे कि नहीं डूबोगे? तो संत एक ही बात कहे, जो कहता है कि मेरा नौका है उसकी नौका डूबेगी, मेरी नौका नहीं डूबेगी। कहने का मतलब जो कहता है मेरा है उसकी डूबेगी। इसलिए द्वै पदे बंध मोक्षाया, दो ही पद बंधन और मोक्ष का कारण है। यह मेरा है, इससे जीव बंधायमान हो जाता है, और यह मेरा नहीं है, इससे जीव छुटकारा हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। इसलिए वास्तव में जागृत अवस्था में अपना लगता है, स्वप्न अवस्था में भी, दिन में जो आप एकचित्त होकर के काम करते हैं या जो भी आप क्रिया करते हैं, तो स्वप्न में भी वही क्रिया आप देखते हैं। लेकिन गाढ़ निद्रा में जब आप चले जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो ये भान ही नहीं रहता है
ख्याल ही नहीं रहता है। तो जागृत अवस्था में लगता है, लेकिन स्वप्न अवस्था में थोड़ा वो स्वप्नता है, गाढ़ निद्रा में रहता ही नहीं। तब महामृत्यु में कौन देखता है? महामृत्यु में रहता ही नहीं। कहने का तात्पर्य है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये भी आपके राम स्वरूप में, आपके चैतन्य में पल रहा है। आहा, जिसके कृपा से हम उठते बैठते चलते खाते पीते, जिसके कृपा से कान के द्वारा अभी आप भोजन ले रहे हैं, अभी कान के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं, कान का भोजन ये शब्द है। लेकिन यहाँ आपके अंदर में चैतन्य आत्मा नहीं हो, कान तो एक साधन है, ये लाउड स्पीकर है, मैक शब्द को दूर तक पहुंचाने का एक माध्यम है, साधन है। अगर इस शरीर से चैतन्य आत्मा निकल जाए, मैं निकल जाऊं और कहे कि तुम बोलो, तो क्यों, कैसे बोलेगा? मैं भी आपको देख रहा हूं, आपके शरीर को देखता हूं, आप भी हमको देख रहे हैं, पंडाल में इस शरीर को देख रहे हैं, लेकिन देखने वाले को नहीं देख रहे हैं। ये तो दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो देखो देखो, देखने वाले को देखो। लेकिन लोग क्या करते हैं? देखो देखो देखो, बायोस्कोप वाले को देखो। बाहर देखता है, बाहर क्या है? अपने अंदर में, मतलब अपनी स्थिति में। कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु राम स्वरूप साहब का शरीर, स्थूल शरीर छूट गया है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल बैठा हुआ है हमारे गद्दी पर। वो आचार्य हमारे सदगुरु कबीर साहब का शरीर नहीं है, लेकिन उनका वाणी वचन, उनका रूप जो है, ये संत महात्मा साधु गुरु जो है, उनका ही ये प्रतिबिंब है। इसलिए साधु संतों के प्रति निष्ठा रखना, सत्संगों के प्रति निष्ठा रखना, सत्संग ही आदमी को पार उतार देता है बेरा। किसी को संपत्ति मिला है तो 2 दिन का है, किसी को लड़के बच्चे मिले हैं तो 2 दिन का है। जो मिला है वो हमेशा रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए राज कोई कह सकता नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे पास कारोबार कितना है, किसी ने कहा तुम्हारे पास परिवार कितना है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें प्रभु से प्रेम कितना है। तो ये संत गुरु महापुरुष जो है, समय समय पर आकर के इस प्रकार से सत्संग के माध्यम से संतों को, भक्तों को अपने प्रचार प्रसार वाणी के द्वारा वो स्थिति में, मतलब स्व में, अपने आप में, राम स्वरूप में, अपने चेतना में ले आते हैं। हम अपने आप से भटक गए हैं, तब भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दही लखाई, काई कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। पारख मतलब विचार, पारख मतलब ज्ञान। कौन ज्ञान? जैसे लोटा का ज्ञान, बाटकी का, पंडाल का, लड़का का, बच्चा का, स्त्री का, पुत्र का, ये ज्ञान नहीं। ये ज्ञान भी जिसमें पल रहा है, ये ज्ञान भी जो करता है, ये ज्ञान किसमें, ज्ञान कौन कर रहा है? ये अगर आपके अंदर में चैतन्य आत्मा ने हो तो कौन ये वाणी को सुनेगा? तो वही उस चैतन्य आत्मा, उस परम पिता परमेश्वर को जानना है। और ये जानने का माध्यम ये सत्संग है और संत है। राम और संत में कोई फर्क नहीं है। हमारे सदगुरु कबीर साहब के परंपरा में ही एक पलटू करके फकीर संत हुए, वो कहते हैं, ए संतो राम को एक करी जानिए, दूसरा भेद ना तन ज्ञान। ए लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी भी या ज्ञान ठाने। ए फूल जो बांस में, फूल जो मतलब जैसे काठ में अग्नि है, फूल में सुगंध है, घी में, दूध में घी है, ऐसे शरीर रूपी दूध में घी छिपा है। ऐसे अंत में कहते हैं, संत में राम है, राम में संत है, दूसरा भेद न तन ज्ञाने, कि संत में ही राम है और राम में ये संत है। तो हमारे पलटू साहब कहते हैं कि संत को देखो तो कहो कि मेरा संत राष्ट्र का संपत्ति है। संत मतलब किसी एक का नहीं, वो सबका है। जैसे सूर्य के अंदर में कोई द्वेष भाव नहीं रहता है कि मैं यहाँ प्रकाश करूं, यहाँ नहीं करूं, ऐसी भावना नहीं है, ऐसा विचार नहीं है। एक ऐसे संत के चित्त में ऐसी बात रहती है तो संत उद्धार करते हैं, संत उद्धार करता है। ये मार्गदृष्टा है। हमारे जीवन को वही प्रशस्त बनाएंगे, साफ करेंगे, बुद्धि को साफ करेंगे। तो हमको 15 मिनट का टाइम दिया गया था, जगदीश साहब की बड़ी कृपा है। 3 बार आप लोग साहेब बंदगी तो कम से कम बोलो प्रेम से, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु राम स्वरूप साहेब की जय, आचार्य साहेब की जय,
साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। પૂજ્ય મહાન શ્રી દુખરણદાસજી સાહેબને રૂપ અને સ્વરૂપનો ભેદ આપ્યો. જે ચર્મચક્ષુથી જોવા મળે છે રૂપ, અને ચૈતન્ય સ્વરૂપ એ સ્વરૂપ. એમણે મેરા મુझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर ની ભાવનાનું દર્શન કરાવ્યું. સુંદર ઉદાહરણો દ્વારા નાવનું ઉદાહરણ આપ્યું એમણે. મને આ તકે સત્યમિત્રાનંદ ગિરિજીનું ઉદાહરણ યાદ આવે છે કે આ જ રીતે તુફાનમાં જ્યારે બધા અટવાયા ત્યારે એક સંત પ્રાર્થના કરે છે, પણ કોઈ પરિણામ આવ્યું નહીં, એટલે દરિયામાંથી પાણી પોતાના કમંડલોમાં ભરી ભરીને નાવમાં નાખે છે. થોડી વારે જ્યારે પવન શાંત થયો, ફરીથી વહાણ ચાલવા માંડ્યું, એટલે નાવમાંથી ફરી કમંડલો ઉલેચવા માંડે છે. કોઈએ પૂછ્યું કે સ્વામીજી આમ કેમ કર્યું, આવું ગાનપણ આપને કેમ સોચ્યું? तो कि देखो भक्त, भगवान की प्रार्थना की, ऐसा लगा कि बस उनको डुबाना है, उनकी इच्छा है डुबाने की. यदि उनकी इच्छा ही है तो मैं अपनी इच्छा उनकी इच्छा के साथ मिला रहा हूं. અને હવે એવું લાગે છે કે ના ના, એમને ડુબાડવાની ઈચ્છા નથી, એટલે હું ફરીથી એમની ઈચ્છા સાથે મારી ઈચ્છા ભેળવી રહ્યો છું. આ ભાવ તટસ્થ ભાવ છે. સંસારમાં રહીને પણ મારું કશું જ નથી, મારે તો આ જગત છોડીને જવું છે, એવો ભાવ મોક્ષ પ્રદાન કરે છે, એમ દુખરણ સાહેબે કહ્યું આપણને. અને છેલ્લે એમણે સૂક્ષ્મ શરીરની વાત કરી. સૂક્ષ્મ શરીર એ જ, અને છેલ્લે સત્સંગની મહિમા એમણે સમજાવી. ખૂબ સુંદર પ્રવચન દુખરણ સાહેબનું હતું. ત્યાર પછીના વક્તા મહાન શ્રી મહેન્દ્રદાસજી સાહેબ, કબીરાશ્રમ વડોદરા. હું એમને પ્રાર્થના કરું કે પોતાનું મનનીય પ્રવચન આપે. મહાન શ્રી મહેન્દ્રદાસજી સાહેબ. આપણે સૌ સદગુરુના નામનો જયકાર કરીએ. બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય. બપોરે બાપુએ બરાબર મમ કરાયું છે, પણ તો હજુ પાવર આવ્યો નથી, થોડો પાવર જોઈએ. બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી યો લોકેન્દુ સમોયમાશ્રિતવતી કીર્તિ સુધાસ્યન્દિનીમ येना कार्यकृति सुबीजक निभा यस्मै जनो रोचते यस्मात् ज्ञान नदी विनिर्गतवती यस्योपकारो महान् यस्मिन् ध्यान गते विनश्यति तमः પાયાત કબીરસન. આજનો આ મંગલમય સ્મરણીય દિન, સ્મરણીય પણ અવિસ્મરણીય પણ, એ જેની પાવન સ્મૃતિના કારણે છે, એવા આપણા સહુના પરમ શ્રદ્ધેય પૂજ્યપાદ શાંતિદાસજી સાહેબ અને પૂજ્ય રામ સ્વરૂપદાસજી સાહેબને હું રામ સ્વરૂપદાસજી એમ નહીં પણ બાપુ કહીને સંબોધીશ, આપણા બધાના બાપુ. મારા પરમ શ્રદ્ધેય પૂજ્ય મહંત શ્રી જગદીશદાસજી સાહેબ, અત્ર ઉપસ્થિત મંચ પર વિરાજિત સર્વ સ્નેહી મહંત સાહેબો, સદગુરુના લાડીલા હંસજનો, ભક્તજનો, ભક્તિમતી માતાઓ, બહેનો. સિર પર સદગુરુ ધારતા, સિર પર સદગુરુ ધારતા પુરુષ પુરુષોત્તમ થાય, હૃદયે શાંતિ જો વસે તો રામ સ્વરૂપ દેખાય. આપણે એ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ જોઈ છે, નહીં તો એક દેહ ન હોય અને છતાંય આટલા વર્ષે એ ઘટ ન હોય, પણ ઘટનો પટ એટલો વિસ્તાર પામ્યો હોય કે આપણે બધા આમ પુનઃ પુનઃ એકત્ર થતા હોય, પુનઃ પુનઃ સ્મરણ કરતા હોય, તો કાંઈક એની
એ વિશેષતા છે. આજે સવારે જ્યારે અહીંયા સંસ્મરણો ચાલતા હતા ત્યારે જ એક સ્ફુરણા થઈ અને પછી આપણે એના ઉપર એ કરશું. પણ સ્મૃતિને ગ્રંથ સ્વરૂપે મેં જોઈ, પૂજ્ય બાપુની સ્મૃતિને ગ્રંથ સ્વરૂપે જોઈ, ખૂબ સારી વસ્તુ છે. પણ એમાંથી આપણે બધાએ લેવાનું કેટલું? તો સ્ફુરણા એમ થાય છે કે સ્મૃતિના ગ્રંથ સંજોઈએ, સમજવા જેવી વસ્તુ છે. સ્મૃતિના ગ્રંથ સંજોઈએ, સ્મૃતિ મન મેં મતિ રાખ. સ્મૃતિના ગ્રંથ સંજોઈએ, સ્મૃતિ મન મેં મતિ રાખ. સ્મૃતિ કર્મ ખેત મેં બોઈ લે, માનવ ફલ મીઠે તું ચાખ. ફલ મીઠે લે ચાખ, માનવ બાંટ કર ખાના. નાના મધુરે ગીત, ફિર યાદ તું લાના. પૂજ્ય બાપુની સ્મૃતિને જગદીશદાસજી સાહેબે પરમ પુરુષાર્થ કરીને ગ્રંથ રૂપે જે આપ્યું એ આપણા માટે અવિસ્મરણીય છે. પણ બાપુ આપણા હતા તો આપણે બધા બાપુના ખરા કે નહીં? જો બાપુ આપણા હોય તો આપણે બધા બાપુના ખરા કે નહીં? મારો પ્રશ્ન પણ છે અને જવાબ માટે મારે બધાના હાથ, જે બાપુના હોય એ પોતાનો હાથ ઊંચો કરે. બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી. એક પ્રતિજ્ઞા, બાપુ જો આપણા હોય અને આપણે બાપુના હોય તો જે બાપુને ગમે એ આપણને સૌને ગમે. બાપુને પૂછ્યું કે તમારે શું કરવું છે, ત્યારે બાપુએ એમ ન કહ્યું કે મારે મંદિર બાંધવું છે, બાવા થઈને બેસવું છે, ક્યાંક ખૂણે જઈને બેસવું છે, એમ નહીં. એમણે કહ્યું સમાજની વચ્ચે આવવું છે, મારે સમાજને હોસ્પિટલ સમર્પણ કરવી છે, મારે દુખિયાના દુઃખ ભાંગવા છે, મારે જ્યાં જરૂર છે ત્યાં છાસ પાવી છે, જ્યાં જરૂર છે ત્યાં અન્નનું. બાપુએ જીવનનું એક પણ ક્ષેત્ર એવું નથી રાખ્યું કે જ્યાં સમાજને અર્થે એમનું શરીર, એમનો દેહ, એમનું જ્ઞાન, એમનો જે કંઈ સંકલ્પ હોય એવો એક ખૂણો ખાલી નથી રાખ્યો કે જ્યાં બાપુ ન પહોંચ્યા હોય. અને આપણે બધા એમ કહીએ કે આ બધું કરનાર કોણ? બાપુને આપણે એમ પૂછ્યું કે બાપુ આ બધું આપે કર્યું? તો બાપુએ એમ જ કહ્યું હોત કે ના, પેલા રહીમ જેવી વાત કરી હોત કે દેને વાલા ઓર હૈ, ભેજત સો દિન રેન, લોગ ભરમ હમ પે કરે, તાતે નીચે ને. બાપુએ કદી એ વાતનો અહમ નથી કર્યો કે મેં કર્યું. બાપુને જ્યારે મેં મારા નાનપણની જે સ્મૃતિઓ છે એમાં જોયા છે, અને એકાદ બે વાર એકાંતિક પણ બેસવાનું થયું ત્યારે બાપુએ કહ્યું અને કહેતા કે આ તો મારો બકરીના આંચળનો ગ્રાસ છે. આપણે બધા બાપુની બકરીઓ કહો કે જેમની પાસેથી એમને કંઈ યોગદાન મળતું હોય, બધી બાપુની બકરીઓ. પણ એ જો બાપુની બકરીના આંચળના ગ્રાસની અંદરથી આટલું થયું હોત તો પછી એમ વિચાર કરો કે બાપુ જો કામધેનું પકડી લાવ્યા હોત તો સંસારનો કોઈ ખૂણામાં દુઃખ રહ્યું હોત ખરું? આપણે એવા બાપુના સમર્થ વારસ, સાહેબ સબકા બાપ હે, બેટા કિસી કા નાય, બેટા હો કે અવતરે વો તો સાહેબ નાય. આવા સમર્થ પુરુષ સાહેબ ધણી આપણા માથે બિરાજતા હોય અને આપણે દીકરાની દીકરી હોય તો આપણે શું ન કરી શકીએ? સાહેબના જે સંકલ્પ છે એમાં આપણો યથાશક્તિ ફાળો આપીએ. આપણા ઘર આંગણે બાપુ હોસ્પિટલની અંદર ત્યાં 200 દર્દીનું એ થતું હોય ને આપણને એમ લાગે કે આપણી આસપાસમાં ક્યાંક કોઈ ખૂણે કોઈ દુખ્યો છે, ભૂખ્યો છે, અને એના માટે એક દર્દીને એક ટંકની દવા આપવા જેટલા પૈસાના ઘરમાં નથી, તો ડાબા હાથને ખબર ન પડે એમ જમણો હાથ ક્યાંક કરી આવે, કોઈકને મમ્મમ કરાવી આવે, બાપુ કેટલા રાજી થાય. તો આવો સંકલ્પ આપણે કરીએ, એમાં બાપુ રાજી રહે, સ્મૃતિ અવિસ્મરણીય રહે, આપણામાં સંસ્કાર આવે, આપણા પરિવારમાં સંસ્કાર આવે, આપણા બાળકો થાય, એની જે પેઢીઓ થાય, એમાં કહીએ કે અમારા એક આવા બાપુ હતા અને છે, એમની સ્મૃતિને આપણે યાદ રાખીએ છીએ અને આમ જ યાદ રાખવાની છે. તો મને લાગશે કે આપણી આ સ્મૃતિ
અવિસ્મરણીય રહેશે. સ્મૃતિ વિસ્મૃતિ નહીં થાય, પણ સ્મૃતિ સંસ્મૃતિ થશે. આગળ પણ ખૂબ બધા વિદ્વાન વક્તાઓ છે. હું તો બાપુનો બાળક છું. જે કંઈ કહેવાયું હોય એમાં ક્યાંય કંઈક સત્ય હોય તો માફ કરજો, પણ લેવા જેવું લાગે તો જરૂરથી લેજો. બોલીએ સદગુરુ કબીર સાહેબ કી બંદગી. પૂજ્ય મહંત મહેન્દ્રદાસજી સાહેબે બહુ ટૂંકમાં પણ વેધક વાત કરી. એમણે એમ બતાવ્યું કે બાપુ પોતા માટે નહીં, સમાજ માટે જીવ્યા. ધૂપસળીની જેમ જીવ્યા. ધૂપસળી પોતે સળગે પણ બીજાને સુગંધ આપે, એમ અનેક કષ્ટો વેઠીને પણ. હમણાં જ મને એક સજ્જન કહેતા હતા કે છેલ્લે બાપુ જ્યારે વિદેશ ગયા ત્યારે એમની તબિયત એટલી બધી નાદુરસ્ત હતી કે ચાલી શકાય નહીં, પણ એમનું આત્મબળ એટલું હતું. અમને એણે સંકલ્પ કરેલો કે નહીં, મારે વિદેશ જવું છે અને મારો સંકલ્પ મારે પૂરો કરવો છે. અને એ ગયા અને બહુ સફળતાપૂર્વક મુસાફરી કરી અને પાછા ફર્યા. પણ એ બીજા માટે જીવ્યા. જે કંઈ કાર્ય કર્યું એ એમણે ભક્તો માટે કર્યું અને પોતાના જીવનની સુગંધ ફેલાવી. એમણે અહમનો ત્યાગ કર્યો. મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે વિનમ્રતાની પ્રતિમૂર્તિ હોય તો એ રામ સ્વરૂપદાસ છે. એમ કહીએ કે વિનમ્રતાએ કોઈ માનવ શરીર ધારણ કર્યું છે તો એ રામ સ્વરૂપદાસજી મહારાજમાં દેખાય. એક સંતને મેં એવું ટાંકતા સાંભળ્યા છે કે હું દેશ વિદેશ ફર્યો છું, અનેક સંતો મહંતોને મેં જોયા છે, પણ રામ સ્વરૂપદાસજીમાં જે વિનમ્રતા છે એ વિનમ્રતા મેં કદી ક્યાંય જોઈ નથી. આ એમનું પ્રમાણ પૂજ્ય બાપુમાં. આપણે બાપુના હોઈએ, બાપુના દીકરા દીકરીઓ હોઈએ તો બાપુના કાર્યમાં ફાળો આપીએ એવું આહવાન શ્રી મહેન્દ્રદાસજી સાહેબે આપણે કર્યું. ત્યારબાદ હરિદ્વારથી પધારેલા મહંત શ્રી બ્રહ્મદાસજી સાહેબને હું પ્રાર્થના કરું કે એ પોતાનું પ્રવચન આપે. શ્રી બ્રહ્મદાસજી સાહેબ. કબીર નામમ પતિતમ પુનીતમ યુગે યુગે સ્વામી હરંતી દુઃખમ દાતાર મુક્તમ પુરુષમ પુરાણમ ચરણારવિંદમ સતતમ નમામિ. ધ્યાન મૂલમ ગુરુમૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરુપદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરુવાક્યમ, મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા. બોલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય. प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहिब, परम पूज्य परम श्रद्धेय राम स्वरूपदास जी साहिब, आचार्य साहिब और हमारे परम प्रिय जगदीश दास जी साहिब और अनेक महंतगण, संत समाज, माता और बहनें, आज हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य राम स्वरूपदास जी साहिब का स्मृति दिवस हम सब लोग मना रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपने सद्गुरु के प्रति यादगारी करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं सभी का। कबीर साहब कहते हैं कि आप करे औरन करवावे, ताका फल कोई पार न पावे। शुभ कार्य मानव खुद भी करे, औरों से भी करावे तो उसका बड़ा भारी पुण्य होता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि सत्संग मानव जीवन में
आत्म कल्याण के लिए सबसे सुगम रास्ता है। जैसे कहा है कि जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। कबीर साहब कहते हैं, तात मिले पुनि मात मिले, भ्राता मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मनवंचित फल पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ उजाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। कहते हैं कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मानव को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, माता पिता भाई बहन धन दौलत राजपाट सब कुछ मिलेगा, बैकुंठ स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए हमें संतों के पास जाना चाहिए और संतों का सत्संग अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मानव का जो धर्म है वो क्या है, हमें ये सोचना है कि मानव का धर्म जो है वो कौन सा धर्म है। मानव का धर्म है सत्य धर्म, सत्य को धारण करना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि मानव का जो धर्म है वो सत्य को धारण करना, सत्य को शिरोधारी करना, ये मानव का धर्म है। और धर्म अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मानव का आत्म कल्याण का जो धर्म है वो सत्य धर्म है। और सत्य धर्म क्यों है? क्योंकि आत्मा का जो पति है वो परमात्मा है, और परमात्मा कौन है? वो सत्य है। जैसे कहा कि साहिब सबका बाप है, बेटा कहू का नाही, और बेटा हो के अवतरे सो तो साहिब नाही। सत्य जो है वो सबका बाप है, किसी का बेटा नहीं है। और साहब कहते हैं दो शब्द हैं, सत्य और साहिब। तो इन दोनों में कितना अंतर है, कितना इसके अंदर दूरी है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी है? कोई दूरी नहीं है। यदि आपने साहिब कहा तो आपने सत्य कह दिया, और यदि आपने सत्य कहा तो आपने साहिब कह दिया। क्योंकि साहिब कहते हैं बड़े को, जो सबसे बड़ा होता है। और सबसे बड़ा कौन होता है? सब जानते हैं कि सत्य ही बड़ा होता है, सत्य ही बड़ा होता है, और बड़े को ही साहिब कहते हैं। इसलिए अंतर कुछ नहीं है, एक ही बात है। तो जो सबसे बड़ा होता है वो किसी का बेटा नहीं होता, वो बाप ही होता है। और बाप कौन है? वो सत्य है। कबीर साहब के अनुसार हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा का जो पति है वो कौन है? वो सत्य है, सतगुरु है, और हम उसकी पत्नी स्वरूप हैं। इसलिए जो है हमें अपनी सुरती से, अपने ध्यान से, अपने वचन से, अपने कर्म से जो है अपने पति का ध्यान करना चाहिए। हमारा पति जो है वो सत्पुरुष है, केवल पुरुष एक ही है, एक ही पुरुष है। वो कौन है? वो सत्य है। हम सत्य पुरुष की भक्ति करते हैं तो हमारा पति पुरुष वो सत्य है। सत्य नाम को छोड़ के करे अन्न का जाप, और वेश्या केरा पूत जो कहे कौन को बाप। जब हम सत्य पुरुष का टिकट ले रहे हैं, सत्यलोक का टिकट ले रहे हैं, सत्य की हमने कंठी बांधी है, और सतगुरु को हमने जो है अपने मस्तक नवाया है, तो फिर हमें दूसरे इधर उधर के देवी देवता, दुर्गा भवानी, ऐसी ऐसी
बातों पर हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि नार कहावे पीव की और है और संग सोए, और जार पुरुष मन में बसे खसम खुशी कैसे होए। जब हम पत्नी जो हैं सत्य पुरुष की हैं, तो फिर हम इधर उधर दूसरे देवी देवताओं का यदि स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हैं पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर रहे। इसलिए जो है हमारा जो पति है वो हमसे खुश नहीं होता, इसलिए हम सुखी नहीं रहते। कबीर साहब ने कहा कि 3 देव को सब कोई धावे और चौथे देव का मरम न पावे। 3 देव को सब कोई धावे, ये सारा संसार त्रिगुण भक्ति में लगा हुआ है। सतगुरु की भक्ति नहीं करते बल्कि त्रिगुण की भक्ति करते हैं। त्रिगुण की भक्ति क्या है? 3 देव को सब कोई धावे और चौथे देव का मरम न पावे, और चौथे को छोड़ 5वें को धावे, कहें कबीर सोई हमरे आवे। कबीर साहब के देश में कौन जाएगा? कबीर साहब के देश में वही जाएगा जो त्रिगुण भक्ति से रहित, त्रिगुण रहिता सत्य वक्ता सत्यलोक निवासितम, सतपुरुष जहाँ सत्य साहिब तहाँ तो आप विराजितम। जो 3 गुणों की भक्ति से रहित होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 देवता हैं, ये त्रिगुण भक्ति है। और इनका जो पिता है वो चौथा देव है। चौथा देव कौन सा है? अभी तो हम 3 में उलझे पड़े हैं, चौथे का तो हमें पता ही नहीं है कि चौथा देव कौन सा है। जिसको काल भगवान कहते हैं, काल निरंजन कहते हैं, वो चौथा देव है। और कबीर साहब कहते हैं कि चौथे को छोड़ 5वें को धावे, कहें कबीर सोई हमरे आए। वो 5वां कौन सा है? वो 5वां है सत्य पुरुष, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसके लिए हमने नाम लिया है, सुमरण की लिया है, पान परवाना हम लोग लेते हैं, वो 5वें का टिकट लेते हैं हम लोग। हम 5वें लोक का टिकट लेकर के और चले जाते हैं निरंजन के देश में, तो दूसरे की गाड़ी में बैठ जाएं। हमने टिकट ले लिया दिल्ली का और बैठ गए हरिद्वार वाली में, तो हरिद्वार वाली बस थोड़ी ले जाएगी। वो कहेगा जी टिकट तो आपका दिल्ली का है, आप इसमें क्यों बैठे हैं, उसमें जाइए, हम नहीं आपको ले जाएंगे। तो वो इधर का रहा ना उधर का रहा। इसलिए जो है कबीर कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि 3 देव को सब कोई धावे, चौथे देव का मरम न पावे, और चौथे को छोड़ 5वें को धावे, कहें कबीर सोई हमरे आवे। ये कबीर साहब का सिद्धांत है, कबीर साहब की वाणी है, ये किसी की बनाई हुई नहीं है। फिर कहते हैं कबीर साहब ने कहा कि गुरु की मूर्ति, गुरु की भक्ति उसी प्रकार से होती है जैसे एक पत्नी अपने पति की भक्ति करती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है। उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में दूसरा कोई और बस नहीं सकता। लेकिन उसके लिए कबीर साहब ने कहा कि क्या रास्ता है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा तो ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, हम क्या करें, हम बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तन थिर मन थिर बचन थिर, उसमें शर्त लगाई, तन थिर मन थिर बचन थिर और सूरत निरथिर होय, कहें कबीरवा दास को कल्प न व्यापे कोई। सबसे पहले हमें तन को, अपने तन को स्थिर करना पड़ेगा। जब हमारा तन स्थिर हो जाएगा तो फिर जो है ना क्या होगा, मन जो है उस तन के साथ में जुड़ जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मन जे गया तो जान दे, अगर मन नहीं टिकता तो मत टिकने दे, कम से कम तू तो बैठ जाए एक जगह स्थिर होके, अपने तन को तो स्थिर करके बैठ जा, मन तो तभी लगेगा। तो कबीर साहब कहते हैं मन जे गया तो जान दे, और गही के राग शरीर, और उतरी परी कमान है क्यों कर लागे तीर। अगर मन जाता है तो जान दे, गही के राग शरीर, शरीर को एक जगह स्थिर करके बैठ जा। जैसे धनुष्बाण होती है, जब धनुष की डोरी उतरी पड़ी रहती है तो तीर यदि चलना चाहे तो कैसे चला जाएगा, तीर क्या कर लेगा उसका, जो है मन रूपी तीर कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमारा तन स्थिर हो जाएगा तो तन के साथ में मन को भी वहां बंधना पड़ेगा। जैसे काग जहाज का तके न दूजी ठोर, यदि पानी के जहाज पे
कोई कौवा बैठ जाए, कोई पक्षी बैठ जाए और वो बहुत दूर चला जाए, जहाज चलना शुरू हो जाए और वो काफ़ी दूर निकल जाए, 2, 4, 10, 20 मील 50 मील निकल जाए अंदर समुद्र के अंदर, तो पक्षी यदि वहाँ से उड़ भी जाता है जहाज पर से, तो ये बताइए कि वो पक्षी कहाँ जाके बैठेगा? उसके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उसको वापस फिर जहाज पे ही आके बैठना पड़ेगा। जैसे काग जहाज का तके न दूजी ठोर, वो दूसरी जगह बैठ ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से ये जो शरीर रूपी जहाज है, जब इसके अंदर से ये मन रूपी पक्षी जो है निकल के चला जाएगा तो चला जाने दो, फिर आकर के फिर यहीं आएगा। वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। तो कबीर साहब कहते हैं कि तन थिर मन थिर, जब तन स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर होगा, वहीं आके उसको बैठना पड़ेगा। और फिर कहते हैं जब तन स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा और फिर सुरती भी आपकी जमेगी, आपका ध्यान भी जमेगा। सूरत निरथिर होय, और कहे कबीर वादास को कल्प न व्यापे कोई। तो इस प्रकार से जो है हमारी मतलब जो है सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि इस तरह से हमें ध्यान और सुमरण और भजन करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि 5 प्रकार के कुंड होते हैं, 5 कुंडों में हमें स्नान करना पड़ता है। कोई मथुरा जाता है, कोई इलाहाबाद जाता है, कोई गंगा जाता है, कोई यमुना जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, नाना प्रकार के तीर्थ व्रत करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जी ने कहा, सतगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, भरमित मन जब होए अस्थिर, बावरिन भव जल आइए। सद्गुरुओं की अधिक महिमा ज्ञान कुंड में नहाइए, भ्रमित मन जब होए अस्थिर, बहुरिन भवजल आइए। तो देखिए कितनी सीधी और सच्ची बात बताई कि सद्गुरुओं की अधिक महिमा ज्ञान कुंड में नहाइए। हमारे संतों का जो सत्संग होता है यही तो सद्गुरु का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान रूपी सत्संग रूपी कुंड में हमें स्नान करना होता है और इसी में जो है हमें गोता लगाना होता है। तभी हमारा जो मन भ्रमित है, जो भटक रहा है, जो इधर उधर भ्रमित फिर रहा है, घूम रहा है, नाना प्रकार से वो तभी एकाग्र हो पाएगा, तभी उसका भ्रम दूर होगा जब हम जो है सद्गुरु के ज्ञान रूपी कुंड में स्नान करेंगे। फिर कहते हैं साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड नाइए, काम क्रोध विकारी परिहरि, बहुरिन भव जल आइए। तो बहुरिन भवजल आइए, उसकी क्या शर्तें हैं? धर्मदास जी ने कहा साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड में नहाइए। भाई बहुरिन भवजल, तो भवजल में आओगे तो नहीं, पार तो हो जाओगे, लेकिन रहनी कुंड में स्नान करना पड़ेगा। रहनी गहनी मतलब जो है जो कहना वो करना। तो रहनी कुंड में जब तुम स्नान करोगे तो वास्तव में जो है काम क्रोध विकार परिहरि, बहुरिन भवजल आइए। इस मतलब जो विषय विकार हैं उनसे जब हम दूर हो जाएंगे, जब हमारी चादर साफ हो जाएगी, जब हम अपनी चादर को धोबी के हाथ धुलवा लेंगे, संतों के सत्संग में जा कर के जब हमको पवित्र करा लेंगे, तभी हम जो है भवसागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। फिर कबीर साहब फिर कहते हैं धर्मदास जी, दासतन की अधिक महिमा सेवा कुंड नाइए। तो जो दास है, जो गुरु का दास है, जो शिष्य है, जो भक्त है, तो उसे कौन से कुंड में स्नान करना है? सेवा कुंड में स्नान करना पड़ेगा। सेवा कुंड नहाइए। तो यदि हमने सेवा की, किसी की भी सेवा की, कबीर साहब कहते हैं कह कबीर पुकार के दोए बात सीख ले, और कर साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे। इस प्रकार की भक्ति जब हम करेंगे, इस लोक की भी भक्ति करनी हमें पड़ेगी। इस लोक की भक्ति करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि कहें कबीर पुकार के और दोए बात सीख ले, और कर साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। आपने इस लोक की भक्ति को भी करना है और परलोक को भी सुधारना है।
हमने जो है यहाँ रहते हुए ही इस लोक को भी हमें खुशहाल करना है, यहाँ भी हमें कुछ करना है, जो पहले करके आए हैं उसका भुगतान करना है और आगे के लिए भी हमें कुछ जमा करना है जो आगे हमारे काम आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि यदि हमारा ये लोक नहीं बना तो परलोक भी नहीं बन सकता। इस लोक को बनाने के साथ साथ में हमें परलोक के लिए भी कुछ साधन जुटाना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि धारा तो दो ही भली, ग्रही या वैराग्य, और ग्रही दासा तन करे और बैरागी अनुराग। हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी रहूं, हर आदमी फल चाहता है, मेवा चाहता है। तो कबीर साहब ने कहा कि धारा तो दो ही भली, ग्रही या वैराग्य, ग्रही दासा तन करे वैरागी अनुराग। तो आप जो है दास भाव में खड़े हुए हो, ऐसे दरवाजे पे खड़े हुए हो। गृहस्थी आश्रम जो ऐसा दरवाज़ा होता है जो केवल सेवा भाव में उसे तत्पर रहना पड़ता है और सेवा की भक्ति, सेवा रूपी कुंड में ही उसको स्नान करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने घर में माता पिता की सेवा नहीं की, किसी भूखे तिसाए को भोजन नहीं कराया, पानी अन्न जल नहीं दिया, किसी नंगे को कपड़ा आपने नहीं पहनाया और आप बद्रीनाथ में जाके, हरिद्वार में जाके, बनारस में जाके नाना प्रकार से ये पूजा अर्पण करें, गायत्री पाठ करें, ये करें, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर कहते हैं जोगी जन की अधिक महिमा, जुगत कुंड नाइये। जोगी जन की अधिक महिमा, जुगत कुंड नाइये। चंद सूरज मन गगन स्थिर कर, बौरिन भव जल आइए। तो कहते जो जोगी जन होते हैं, जो ध्यान करने वाले होते हैं, उनको क्या जुक्ति कुंड में स्नान करना पड़ेगा। जुक्ति कुंड क्या होता है कि सिर पर साहिब राख के चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरवा दास को तीन लोग डर नाही। अब कहते हैं साहिब जो है सिर पर साहिब राख के, वो साहिब कौन सा होता है? ये साहिब कौन सा होता है? एक बात तो ये है कि जो कबीर साहब ने, जो संतों ने, जो हमारे महापुरुषों ने वाणी वचन कहे, उन वाणी वचनों को हम सिरोधारी करके चलें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुगम रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जब तन की बात आती है तो इसके अंदर जो है इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी तीन विचार, इस प्रकार से जो है ये एक लंबा सिलसिला है। अभी देखिए आपके सामने पूज्य आचार्य साहब पधार रहे हैं, तो इसलिए जो है मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि समय भी 15 मिनट का ही था, समय पूरा हो चुका है और साहिब पधार रहे हैं। बोले सतगुरु कबीर साहेब की, बोले सतगुरु कबीर साहेब की। परम पूज्य पंथ श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सब खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। पूज्य श्री ब्रह्मदास जी साहिब ने कुछ चुने हुए मोती हमारे सामने रखे। एमने कहूँ संत समागम दुर्लभ है, सत्य ही
सबसे बड़ा है। गांधी जी कहा करते थे कि मैं परमेश्वर को सत्य कहने की अपेक्षा सत्य को ही परमेश्वर कहूँगा। એ વાત એમણે પોતાના શબ્દોમાં કહી। પતિવ્રતા ધર્મનું પાલન કરવા માટે સાહેબની વાણીના એમણે દાખલા આપ્યા। સાહબ મેરા એક હૈ દૂજા કહા ન જાય, દૂજા સાહબ જો કહું સાહબ ખરા રિસાય। નૈનों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी कह प्रिय को लिया रिझाए। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाई, भरी सराय रही मन लखी आप पथिक फेरी જાય। એ એકેશ્વરવાદ અને પતિ પ્રત્યેની ભક્તિની વાત શ્રી બ્રહ્મદાસજી સાહેબે કરી। मेरो मन अनंत कहाँ सचु पावे, जैसे जहाज को पंछी उड़ी उड़ी जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सचु पावे। जे સુરદાસે વાત કરી એ બ્રહ્મદાસજીએ પણ આપણને યાદ અપાવ્યું। સેવા કુંડ અને સેવા જ જીવનમાં સબ કુછ હૈ એ એમનું મંતવ્ય હતું। ત્યાર પછીના વક્તા સુરતથી પધારેલા મહંત શ્રી ભજનદાસજી સાહેબ। હું શ્રી ભજનદાસજી સાહેબને વિનંતી કરું કે પોતાનું પ્રવચન આપે। महंत श्री भजनदास जी साहेब। एक बार हम सब लोग मिल करके उस परमपिता परमात्मा सत्पुरुष का जयकारा लगावें ताकि हम सब लोगों का आलस दूर हो जाए और चेतना की अवस्था में पुनः आ जाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आवाज धीमी है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहेब की। पंच श्री हजूर साहेब की। पंच श्री हजूर साहेब की। पूज्यपाद महंत राम स्वरूप साहेब की। पूज्यपाद महंत श्री जगदीश साहेब की। पूज्यपाद महंत साहेबों की, संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की, आज की आनंद मंगल की। हम सब लोग आज का जो दिवस है पावन दिवस है और हम जो यहाँ के महापुरुष सदगुरु राम स्वरूप साहेब के स्मृति के रूप में सदगुरु कबीर साहब का एक जो वंदना है प्रार्थना के रूप में, उसे हम सब मिल कर के कहेंगे। मैं आगे कहूँगा, आप लोग थोड़ा उसे दोहराने की कोशिश करेंगे। सतगुरु मेरा जीवन, सतगुरु मेरा जीवन, संसार के लिए हो। सतगुरु मेरा जीवन, संसार के लिए हो। संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन, यह जिंदगी हो लेकिन, उपकार के लिए हो। उपकार के लिए हो। सतगुरु मेरा जीवन, सतगुरु मेरा जीवन, कल्याण के लिए हो। संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा, सुंदर स्वभाव मेरा, दुश्मन का मन रिझाले। दुश्मन का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे। वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो। तुम प्यार के लिए हो। सतगुरु मेरा जीवन,
सतगुरु मेरा जीवन संसार के लिए हो, संसार के लिए हो।